Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for class 8th. Our today's topic is Reproduction in Animal, chapter 9th. In previous videos, we discussed about definition of reproduction, types of reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, male reproductive organ, female reproductive organ, sperms, ovum, process of fertilization, embryo, zygote. Now, our today's topic is viviparous and oviparous animals. Okay, students, we have learned that some animals give birth to young ones, while some animals lays eggs which later develop into young ones. These animals which give birth to young ones are called viviparous. Those animals which lays eggs are called oviparous animals. ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं और कुछ एनिमल्स जो है अपने जैसे यंग वंस को डेवलप करते हैं। तो जो एनिमल्स एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास है हैंस, ओके, और विविपेरस जो अपने जैसे एनिमल्स को यंग वंस को बर्थ करते हैं, काउज के एग्जांपल हैं, डॉग्स इसके एग्जांपल हैं। So the following activity will help you understand better, differentiate between viviparous and oviparous. Okay, the egg of a few animals are easy to observe because these mother lay them outside the bodies. These are example of oviparous animals, but you would not be able to collect the eggs of dogs, cows and eggs. This is because they are not lays egg. The mother give birth to young ones. These are examples of viviparous. viviparous जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे यंग वंस को देते हैं, जैसे हमने देखा डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काउज हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट यंग वंस टू अडल्ट्स. The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. कुछ जो एनिमल्स जो एग ले करते हैं वो एग कंटिन्यू ग्रो डेवलप होते हैं, तो वो अपने एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं अपने एडल्ट से ग्रोइंग पीरियड में। इनमें एक मिडिल स्टेज आती है जिसे हम लार्वा स्टेज भी कहते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट एग. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. egg to larva, larva to caterpillar, caterpillar to pupa, pupa to adult. You studies in class 7. frog is another such example. frog में भी ऐसा हुआ था, एग से अर्ली टेडपोल्स बने थे, एग और स्पर्म्स के फिजन से फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन से अर्ली टेडपोल बना था। अर्ली टेडपोल जो फ्रॉग से डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में, ये अर्ली टेडपोल लेट टेडपोल में कन्वर्ट हुआ था, देन ये अडल्ट में चेंज हुआ था। तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस टॉपिक में हम यही ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। Don't the tadpole look so different from the adults? Can you imagine that these tadpole would some days become frog? Similarly, the caterpillar or pupa of silkworm look very different from adult moth. ये जो हमने देखा था टेडपोल था, ये डिफरेंट था फ्रॉग से। ऐसे ही हमने सिल्कवर्म में देखा था जो कैटरपिलर और प्यूपा की जो स्टेज थी वो मॉथ बटरफ्लाई से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके, the features that are present in the adults are not found in these young ones. Then what happened to the tadpole or caterpillars? Therefore, कुछ स्ट्रक्चर जो होती है वो इनमें नई डेवलप होती है और कुछ स्ट्रक्चर इनमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो कुछ चेंजेस आते हैं अडल्ट बनने में। You must have seen a beautiful moth emerging out the cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. कुछ मॉथ, हमने जो मॉथ का एग्जांपल देखा था, इनमें हमने देखा था कोकून से जब आगे जाके मॉथ का डेवलपमेंट हुआ था
तो ये पूरी तरह डिफरेंट हो जाती है। तो इनमें जो चेंजेस आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इनमें कुछ नए कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रेस्टिंग changes is called metamorphosis. What about the change that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis in human being? Body parts similar to those person in the adults are present from the time of birth. हमारे में इतना देखिए, जो हैंड्स है, जो एक्सटर्नल हमारे पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो सारे हमें बर्थ के टाइम में भी ऐसे ही होते हैं और जब हम डेवलप होते हैं तो भी वैसे ही होते हैं। हाँ, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ओके, हमने देखा था टैडपॉल के बारे में। जब हम देखते हैं तो टैडपॉल और फ्रॉग में कुछ डिफरेंस हो जाता है। कुछ आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की दिख रही होगी। टैडपॉल जो है वो एक्वाटिक होता है, जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो एक्वाटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए भी मैच्योर और परफेक्ट हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने चैप्टर स्टार्ट के समय भी देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वेरिएशंस नहीं आती है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट का फिजन नहीं होता है। ओके, so far we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra, microscopic organism like amoeba? Do you know how they reproduce? जो हमने देखा था अमीबा था, हमने देखा था इरेगुलर शेप का अमीबा था। इरेगुलर शेप के अमीबा में हमने देखा था मल्टीपल फिजन भी हुआ था, बाइनरी फिजन भी हुआ था। हाइड्रा में हमने देखा था एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ था और बर्ड से फिर ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है हाइड्रा। देन इसमें क्या हो जाता है, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया हाइड्रा डेवलप हो जाता है। Get permanent slides of hydra, observe them using hand lens or a microscope. Look out the any जो हमने बर्ड देखी थी, काउंट द नंबर ऑफ बर्ड। जो ये बर्ड होती है ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाती है एंड देन ये डेवलप हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट अमीबा। अमीबा में हम बाइनरी फिजन देख रहे हैं। एक अमीबा है वो दो डॉटर अमीबा में डिवाइड हो रहा है। इन ईच हाइड्रा, ओके, हाइड्रा के बारे में बता रहे हैं। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और टू मोर देन बल्ब्स। These bulbs are developing new individuals, they are called buds. Recall the presence of buds in yeast in hydra. Two new individuals develop as outgrowth from a single parent. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन फीचर ये होता है कि इसमें सिंगल पेरेंट नीडेड होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल और फीमेल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ recall the presence of birds in yeast in hydra. To the new individual develop as outgrowth from a single parent. This type of reproduction which only a single parent is involved in is called asexual reproduction. Since new individuals develop from birds in hydra, this types of asexual reproduction is called budding. hydra में इस प्रोसेस को हम budding कहते हैं, जिसमें एक सिंगल बर्ड से पूरे एनिमल का ग्रो हो जाता है। ओके, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अनदर पार्ट को स्टडी करेंगे अमीबा में, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। You have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single cell organism. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. एक न्यूक्लियाई का दो न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइडेशन हो जाता है और दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है, डेट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इज अमीबा। ओके, दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट्स receiving a nucleus. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction is called
binary fission. Reproduction in which an animal reproduces by itself into two individuals is called binary fission. Definition is कि apart from budding or binary fission there are other method by which a single parent reproduce young ones. We will study about these in higher classes. Okay.